Chapter Going Places. Have you ever dreamed of meeting your favorite celebrity? Have you ever imagined that one day your life will completely change? Or maybe you created a dream so real that even you started believing it? Today's story is about a girl who didn't just dream big, she lived inside her dream. This is the story of Sophie and her journey of dreams and reality. Introduction. This beautiful story, Going Places, is written by A.R. Barton. It shows us the difference between dreams and harsh reality. And trust me, by the end of this story, you might see your own dreams differently. Girl Part 1. Sophie's Dream World. Meet Sophie, a teenage girl full of dreams. She doesn't want a normal life. She doesn't want to work in a biscuit factory like others. She wants something big, something different. Now give me an answer. Have you ever felt like this? Like you are meant for something bigger? Sophie tells her friend Jansi, I will open a boutique. A boutique? Sounds fancy, right? But Jansi, being practical, says, where will you get money from? Because Jansi knows the truth. They belong to a poor family, and dreams need money. Part 2. The Big Dream, Danny Casey. Now comes the most exciting part. Sophie tells her brother Jeff that she met a famous football player, Danny Casey. Just imagine meeting your idol. Randomly, she even says he spoke to her and asked her for a date. Now again tell me, do you think it's true or just imagination? Sophie builds this story slowly, adding more details, making it more real. And here's the twist. She starts believing her own lie. Part 3. Jeff, the silent listener. Jeff, her brother, is quite reserved. He doesn't talk much, but Sophie trusts him. She shares her dreams only with him, and Jeff listens without judging. Sometimes, all we need is someone who listens. But deep inside, Jeff knows this story might not be real. Part 4. The Wait. One day, Sophie goes to meet Danny Casey. She waits and waits, her heart full of hope, eyes searching in the crowd. But he never comes. Reality hits her, and suddenly, her dream world begins to break. Conclusion. Sophie returns, disappointed, but somewhere, she still wants to believe. This story teaches us something very deep. Dreams are beautiful, but if we live only in dreams, we may forget reality. Message. So what should we do? Should we stop dreaming? No. Dream, but stay grounded. Imagine, but take action. Because dreams without reality become illusions. If you were Sophie, what would you do? Tell me in the comments. And don't forget to like, share, and subscribe to English Pathshala. Because here, learning is not boring. It's a story. Chapter Going Places. क्या आपने कभी सपना देखा है अपने किसी फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलने का? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? या फिर आपने कोई ऐसा सपना बनाया जो इतना सच्चा लगने लगे कि आप खुद उस पर विश्वास करने लगे? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने सिर्फ बड़े सपने ही नहीं देखे बल्कि उन सपनों में जीना शुरू कर दिया। यह कहानी है सोफी की और उसके सपनों और हकीकत के बीच की यात्रा की। इंट्रोडक्शन। यह खूबसूरत कहानी गोइंग प्लेसेस लिखी है A.R. बार्टन ने। यह हमें दिखाती है सपनों और कड़वी सच्चाई के बीच का फर्क। और यकीन मानिए, कहानी के अंत तक आप अपने सपनों को एक नए नजरिए से देखेंगे। पार्ट 1। सोफीज ड्रीम वर्ल्ड। मिलिए सोफी से, एक किशोरी जो सपनों से भरी हुई है। वह एक साधारण जीवन नहीं चाहती। वह बिस्किट फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहती जैसे बाकी लोग करते हैं। वह कुछ बड़ा करना चाहती है, कुछ अलग। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं? सोफी अपनी दोस्त जैंसी से कहती है, मैं एक बुटीक खोलूंगी। बुटीक सुनने में कितना शानदार लगता है ना? लेकिन जैंसी, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है, पूछती है, इतने पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि जैंसी सच्चाई जानती है। वे एक गरीब परिवार से हैं और सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पार्ट 2। द बिग ड्रीम, डैनी केसी। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। सोफी अपने भाई जियोफ से कहती है,
कि वह एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी से मिली है। जरा सोचिए, अपने आइडल से अचानक मिलना। वह कहती है कि उसने उससे बात भी की और उसे डेट पर बुलाया। क्या आपको लगता है यह सच है या सिर्फ कल्पना? सोफी धीरे धीरे इस कहानी को और बड़ा बनाती है, उसमें नए नए डिटेल्स जोड़ती है और फिर आता है ट्विस्ट। वह खुद अपनी ही बनाई हुई कहानी पर विश्वास करने लगती है। पार्ट 3, जेफ द साइलेंट लिसनर। जेफ, उसका भाई, बहुत शांत स्वभाव का है। वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन सोफी उस पर भरोसा करती है। वह अपने सारे सपने सिर्फ उसी से शेयर करती है और जेफ बिना जज किए बस सुनता रहता है। कभी कभी हमें सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें ध्यान से सुने, लेकिन अंदर ही अंदर जेफ जानता है कि यह कहानी शायद सच नहीं है। पार्ट 4, द वेट। एक दिन सोफी जाती है डैनी केसी से मिलने। वह इंतजार करती है और करती रहती है। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ है, आंखें भीड़ में उसे ढूंढ रही हैं, लेकिन वह कभी नहीं आता। हकीकत उसके सामने आ जाती है और अचानक उसकी सपनों की दुनिया टूटने लगती है। कंक्लूजन, सोफी वापस लौटती है निराश होकर, लेकिन कहीं न कहीं वह अभी भी विश्वास करना चाहती है। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। सपने बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ सपनों में ही जीने लगे तो हम हकीकत को भूल सकते हैं। मैसेज, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए? नहीं, सपने देखो, लेकिन जमीन से जुड़े रहो। कल्पना करो, लेकिन उस पर काम भी करो, क्योंकि हकीकत के बिना सपने सिर्फ भ्रम बन जाते हैं। अगर आप सोफी की जगह होते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट में जरूर बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पढ़ाई बोरिंग नहीं, एक कहानी है।